राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठाए सवाल तो अमेरिका की धरती से शशि थरूर ने भी हंसते हंसते कांग्रेस को दे दिया करारा जवाब। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि इन दिनों भारत से डेलीगेशन गया हुआ है अमेरिका में, जो लगातार खोल रहा है पाकिस्तान की पोल। पर वहीं दूसरी तरफ भारत में बैठे राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता आज मौजूदा सरकार पर और आर्मी पर उठा रहे हैं सवाल। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर, और यही सवाल वॉशिंगटन डीसी में पूछा गया शशि थरूर से कि एक तरफ आप पाकिस्तान को लेकर दे रहे हैं इस तरीके से बयान, वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार और ट्रंप को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। और सवाल सुनते ही हंस पड़े शशि थरूर और हंसते हंसते उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं है, यानी कि भारत को नहीं है किसी भी तीसरे देश से मध्यस्थता करने की जरूरत। भारत अपने फैसले खुद ही लेता है। और इसी के साथ साथ क्या और बातें कही है शशि थरूर ने और किस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए आईना दिखा दिया है शशि थरूर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के, जरा सुनिए इस वीडियो में। Do you feel India has been firm enough in its response to the constant mediation claimed by the U.S. President? It's a question that your own party continues to ask back home. Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. So if they in turn then told the Pakistanis, you better stop because the Indians are willing to stop, and that was what they did, then that's wonderful gesture on their part vis-a-vis Pakistan, but only Pakistan and they can tell us exactly what happened. With us, all we can say is that we know in our conversations some of these things that come up. But I want to say this in a very constructive spirit. We have an enormous respect for the US, and we have a much more important, valuable strategic partnership with Washington that we wouldn't want to jeopardize over a matter of detail. We are interested, we're talking at the moment about a number of areas of cooperation. We're interested in enhancing all of that. So small matters can go by and we can focus on tomorrow. As far as the political question is concerned, I would just like to express my admiration for Dr. Tharoor, who I've known for a long time. He always puts country before party. तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से शशि थरूर ने पाकिस्तान, आतंकवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया, और इसीलिए लगातार शशि थरूर को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका में शशि थरूर ने बजा दिया है भारत का डंका। जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान और आतंकवादियों के ऊपर, पर वही दूसरी तरफ राहुल गांधी के तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस की जो तमाम नेता हैं, वो शशि थरूर को लेकर भी पहले बयानबाजी कर चुके हैं। पर पहले हम आपके लिए ये भी बता दें कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या क्या बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। एक तरफ कहा गया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरीके से जान गया हूं, इनको थोड़ा सा दबाओ तो ये लोग डर कर भाग जाते हैं।
और इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जी हजूर कहते हुए ट्रंप के इशारे का पालन किया। पर एक तरफ कांग्रेस लगातार उठा रही है सवाल, जिसका जवाब आज कांग्रेस के ही नेता दे रहे हैं। जिस तरीके से शशि थरूर ने कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब अमेरिका से ही भेज दिया है, जिससे अब लगातार पोल खुल रही है राहुल गांधी और कांग्रेस की। देखिए, एक तरफ विदेश की धरती से शशि थरूर ने कहा है कि भारत को किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, हमें किसी से मध्यस्थता कराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा अपना मैटर है। और इससे पहले भी शशि थरूर ने यह बयान दिया है कि सीज फायर इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि वॉर बंद कर दीजिए और उसके बाद भारत की सरकार और भारत की आर्मी ने सीज फायर किया है, ना कि अमेरिका के कहने पर। उसके बावजूद भी किस तरीके से अपनी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद सीडीएस अनिल शर्मा जो कई बार बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान 48 घंटों की जंग चाहता था, पर पाकिस्तान ने 8 से 9 घंटों में भारत के सामने सरेंडर कर दिया। इतने बड़े बड़े बयानों के बावजूद भी राहुल गांधी और कांग्रेस ये सवाल उठा रही है और कह रही है कि सीज फायर इसीलिए किया गया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कॉल किया था। और यहाँ पर कांग्रेस का फिर एक बार देश विरोधी, सेना विरोधी बयान देश की जनता के सामने आ चुका है। पर आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के इस तरीके के बयान आज राहुल गांधी को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पीओके वापस ला सकते हैं। पर जो व्यक्ति अभी से ही चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोल रहा हो, वो आखिरकार कैसे देश का प्रधानमंत्री बनेगा? आज ये तमाम बातें देश की जनता कर रही है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी के बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए, एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो आज सेना के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी सेना पर ही सवाल उठा रहा है। मौजूदा सरकार से दुश्मनी है, समझ आता है, पर सेना ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर छोटी चीज की जानकारी दी है। फिर इस तरीके के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सीज फायर को हुए अब लगभग 1 महीना होने वाला है और इसमें 1 महीने के अंदर कांग्रेस ने हमेशा ही भारतीय सेना को लेकर सवाल उठाए हैं। कभी राहुल गांधी पूछते हैं कि सरकार ये बताए कि हमारे कितने जेट गिरे हैं। कभी कहा जाता है कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही जानकारी दी। इस तरीके के जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, ये राहुल गांधी को ही अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी के बयानों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जहां कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं, पर वहीं दूसरी तरफ उनके सवाल और उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो शायद राहुल गांधी की लुटिया डुबाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के बयानों को लेकर कांग्रेस को छोड़ चुके नेताओं ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि राहुल गांधी की जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि वो क्या लिखकर राहुल गांधी को थमा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर ही सवाल उठ रहे हैं। साथ ही आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान को लेकर पहले ही भारत सरकार और भारतीय आर्मी का स्टैंड क्लियर है। सरकार के द्वारा कहा जा चुका है, रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो जो कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर की गई है वो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे चलकर हम पूरी फिल्म भी दिखाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्टैंड क्लियर है, पर कुछ ऐसे बयान हैं हमारे ही देश के विपक्षी नेताओं का, जिनका सहारा लेकर पाकिस्तान आज अपनी मीडिया में चला रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी के साथ साथ तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बयानों को आज पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है, जिन पर आज देश की जनता लगातार सवाल उठा रही है, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर वाली वीडियो भी काफी ज्यादा जोरों से पाकिस्तान में इन दिनों चलाई जा रही है। और इसीलिए राहुल गांधी के इन तमाम वीडियोस, बयानों पर सवाल भी जनता उठा रही है।